جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، 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 اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ او خم ممبر بنا کر یہ بولے نبی، خم ممبر بنا کر یہ بولے نبی، بولے ممبر بنا کر یہ خم نبی، یہ ہے ممبر علی کا تمہارا نہیں، ممبر علی کا تمہارا نہیں، اور صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، کل کے مشکل کشا کا یہ کردار ہے، کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اور روٹیاں گر نہ دیں اہل بیت نبی، روٹیاں گر نہ دیں اہل بیت نبی، اہل بیت نبی روٹیاں گر نہ دیں، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں، اور جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں، کیا یہ خم نبی پکارا نہیں، خم نبی نے پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اور جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، ذکر مولا علی جس میں شامل نہ ہو، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، وہ عبادت کو گوارا نہیں، اور جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں، غاصب و باغ جنت تمہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ بلند تر صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ
प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा आखें नदीमा वीरा आखें नदीमा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा करा वसीयत मैं अमर दी पूरी बैठन दी है मजबूरी आम को गल लावीरा आम को गल लावीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा जिवें तैकू मत लाया जुलझना तू अमड़ी जाया जिवें तैकू मत लाया जुलझना तू अमड़ी जाया भुल सीना दुखिया वीरा भुल सीना दुखिया वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा तेंदी लाश तू पत्थर हटेंदी तैकू कफन पवा के वेंदी तेंदी लाश तू पत्थर हटेंदी तैकू कफन पवा के वेंदी मैं हाँ बाजर दा वीरा मैं हाँ बाजर दा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा झिणका दे केश मर कमीना आद छोड़ दे प्यू दा सीना झिणका दे केश मर कमीना आद प्यू दा छोड़ दे सीना धी को आप हटा वीरा धी को आप हटा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा झिणका दे केश मर कमीना आद छोड़ दे प्यू दा सीना धी को आप हटा वीरा धी को आप हटा वीरा प्यासा गल चुमवा वीरा चुनका समझो ले पा फरमावे रो रोशा चुनका समझो ले पा फरमावे रो रोशा तंडे टुकड़े चन कासम तंडे टुकड़े चन कासम किवें
دیکھ سی اجڑی ماں چن کا سمجھولی پا فرماوے رو روشا آئیں ماں دے سند والے ٹکڑے شاکوں یادے ٹکڑے شانوں یادے جدہ چونن لگا قاسم بن وچ دستار وچا چون قاسم جھولی پا فرماوے روشا انا للہ پڑھ کے یکو خاک تشا چایا اکو خاک تشا چایا جنو ٹوریا یمڑی جنو ٹوریا یمڑی پڑھ پڑھ کے چون قاسم جھولی پا فرماوے رو روشا جدوں لاش وہ خیمے آئی اکھیں امڑی درد ستائی اکھیں امڑی درد ستائی تنڈے سگن کرے اجڑی یا سوگ تنڈا بچڑا چون قاسم جھولی پا فرماوے رو روشا کر ماتم مایا کے سر وچ مٹیاں پاکے سر وچ مٹیاں پاکے میرا 13 سال دا چن میرا 13 سال دا چن کیویں گئے گنڈڑی وچ آیا چون قاسم جھولی پا فرماوے رو روشا محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ہمارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے تھے پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا لیس غیر کا گلا خون
خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علی علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں آکے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے آکے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کس منہ سے کہوں پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں صلوات محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات محمد وآل محمد امام حمزہ خالق اعظم کے لیے
उन झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा का जिक्र चले कि जिसके नाम खुदा ने बदल बदल के लिए। गमे हुसैन अमानत है आज की सुन लो, ये रिज़्क़ मैंने बचाया खुदा कल के लिए। इनके खाके शिफा से लिखी जो नादे अली, यही बहुत है मेरे नामाए अमल के लिए। और मेरे इमाम मेरी ज़िंदगी के रब मौला, मेरे नसीब में ये फैसला अटल दे दे, ये माह साल ये जीवन के दिन सारे ले ले, मुझे बस अपनी ज़ियारत का एक पल दे। दुआ करता हूँ जो मोमिनात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मौला आप साहब की हाजात आपकी तौफीकात में बरकत दे। सुन पाने आने मजलिस की मातमदारी की तौफीकात में, कारोबार में, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। मेरे पालने वाले जो बेघर हैं उनको घर अता कर, जो बेघर हैं उनको घर अता कर, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता कर। मेरे पालने वाले मैं इन सब की हाजात नहीं जानता, जो जो हाथ तेरी बारगाह में बुलंद हैं, सफ़ी हुसैन के हाथों का वास्ता वो खाली ना है। हमारे वारिस का पालने वाले जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। एक दरूद बाबा बीबी माशाल्लाह ये सारे ज़ियारत से आए हैं। उसी सिलसिले में 4 मिसरे कि ये इबारत करबला की खाक पर तहरीर है। ये इबारत करबला की खाक पर तहरीर है। क्या मातमे तारीख़ इंसान मातमे शब्बीर है। मातमे तारीख़ इंसान मातमे शब्बीर है। और मज़हब इस्लाम ये हक़ का प्याम आखिर है। करबला के गाजियों का नारे तकबीर है। करबला के गाजियों का नारे तकबीर है। और हजरे अस्वद से है तेरे जौन का रुतबा बुलंद। हजरे अस्वद से है तेरे जौन का रुतबा बुलंद। करबला तो खाना-ए हक की नई तामीर है। करबला तो खाना-ए हक की नई तामीर है। भी मैं ये पढ़ना नहीं था, ये सामने आ गया तो पढ़ देता हूँ कदा, क्योंकि खासकर शाहजी के घर जब मैं आता हूँ तो अलम को सलाम करता हूँ। मेरा दिल यही होता है कि अलम के ऊपर 1-2 कते कोई पढ़ना है कि अज़ाए शाह के जाओ हशम से डरते हैं। अज़ाए शाह के नहीं, अज़ाए शाह के मजलिस के जाओ हशम से डरते हैं। यजीदी जितने हैं सब अहले गम से डरते हैं। अज़ाए शाह के जाओ हशम से डरते हैं। यजीदी जितने हैं सब अहले गम से डरते हैं। और जलाल गाजी का जिनके बड़ों ने देखा था, वो लोग आज भी काले अलम से डरते हैं। जिनके बड़ों ने देखा था, वो लोग आज भी काले अलम से डरते हैं। ये मैंने मुसद्दस अलम पे लिखी थी, लेकिन मुहर्रम में मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। एक बंद इसका सुन ले कि टूटे हुए दिलों की आस है अलम। टूटे हुए दिलों की आस है अलम। हिस जिसको छू सके ना वो एहसास है अलम। हिस जिसको छू सके ना वो एहसास है अलम। अब्बास की वफाओं का अक्कास है अलम। और सरता कदम सरापाए शबीए अब्बास है अलम। अरे अब्बास के जलाल का अक्कास हो गया, अब तो अलम का नाम ही अब्बास हो गया। तो अलम का अब तो अलम का नाम ही अब्बास हो गया। फिर इंशाल्लाह अगली मजलिस में आपको पूरी मुसद्दस सुना देंगे कि ये इब्तदा भी तो है इंतहा के लहजे में। ये इब्तदा भी तो है इंतहा के लहजे में। खुदा कलाम करे मुर्तज़ा के लहजे में।
اور دیار شام میں مشکل کے وقت زینب نے زبان کھولی ہے مشکل کشا کے لہجے میں، اور پدر کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو زینب، پدر کے لہجے میں کرتی ہے گفتگو زینب، سکینہ بول رہی ہے چچا کے لہجے میں، اور مدد کو حضرت عباس یقیناً آئیں گے، لیکن یہ شرط ہے پکارو وفا کے لہجے میں، یہ شرط ہے پکارو وفا کے لہجے میں۔ چلے، تیغ کا پانی تو شہ کو دے دیا عباس نے، تیغ کا پانی تو شہ کو دے دیا عباس نے، اپنے پاس دریا رکھ لیا عباس نے، اور بند تھی صدیوں سے وعدے اور وفا میں بول چال، دونوں لفظوں کو ملا کے رکھ دیا عباس نے، دونوں لفظوں کو ملا کر رکھ دیا عباس نے، اور پیاس بھی محکم تھی پانی بھی تھا زیر قدم، پیاس پہ بھی حکمرانی تھی، پانی بھی زیر قدم تھا، پیاس بھی محکم تھی پانی بھی تھا زیر قدم، خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے، خشک و تر دونوں پہ قبضہ کر لیا عباس نے، اور اشکیاں نے رن میں اتنی بار ٹھنڈی سانس لی، اپنا جتنی بار غصہ پی لیا عباس نے۔ اور شاہ جی جس مصرے کے لیے یا باقی مصرے لکھے کہ ہاتھ جھکتا ہے مسلح پر جبیں سے پیشتر، ہاتھ جھکتا ہے مسلح پر، ہاتھ جھکتا ہے مسلح پر جبیں سے پیشتر، شہ سے پہلے شکر کا سجدہ کیا عباس نے، شہ سے پہلے شکر کا سجدہ کیا عباس نے۔ ایک درود بآواز کافی قطعات لکھے ہوئے تھے، اسی میں سے سناتا جا رہا ہوں جی ماشاءاللہ۔ کہ بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسا، بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسا، علی کے بغیر کوئی توحید ثابت نہیں کر سکتا، بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسا، وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسا، وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسا، مانا کہ عبادات ہیں یہ روزہ یہ نمازیں، کب کس میں مزہ ہے کوئی حیدر کی دلاسا، بے شک، کب کس میں مزہ ہے کوئی حیدر سی ولا کا، اور بندہ کوئی مولا کوئی اللہ اسے سمجھا، بندہ کوئی مولا کوئی اللہ اسے سمجھا، ہر آنکھ نے کرار کو دیکھا ہے جدا سا، ہر آنکھ نے بندہ کوئی مولا کوئی اللہ اسے سمجھا، ہر آنکھ نے کرار کو دیکھا ہے جدا سا، اور سمجھو اسے ماں کی گناہوں پہ یقین ہے، شک ہو جسے حیدر کی ولا میں ذرا سا، ماں کے گناہوں پہ یقین ہے، شک ہو جسے حیدر کی ولا میں ذرا سا، اور اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے مولا، اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے مولا، ویسے یہ نصیری کا خدا ہے تو خدا سا، ویسے یہ نصیری کا خدا ہے تو خدا سا، خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے، اور کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھ دوں، یہ ہاتھ میرا صحیح مگر قلم حسین کا ہے،
और मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पे करम हुसैन का है, अता किया हुआ सारा भरम हुसैन का है, और निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से, निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से, नमाज पढ़ता है तो ये भी करम हुसैन का है, नमाज पढ़ता है ये भी निशान सजदा न टकरा निशान मातम से, अरे नमाज पढ़ता है तो ये भी करम हुसैन का है, फकीर पीर कलंदर किसी से पूछ के देख, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है, और दिल में मेरे हुसैन है लब पर हुसैन है, दिल में मेरे हुसैन है लब पर हुसैन है, क्यों बचपन से ही सबक मुझे अजबर हुसैन है, बचपन से ही सबक मुझे अजबर हुसैन है, दुनिया खुशी से जिस्म को टुकड़ों में बांट दे, मैं मुतमईन हूँ मेरी रूह के अंदर हुसैन है, मैं मुतमईन हूँ मेरी रूह के अंदर हुसैन है, और अफसोस मुझको है कि अदा कर ना पाऊंगा, अफसोस मुझको है कि अदा कर ना पाऊंगा, छोटी सी मेरी जिंदगी में गम हुसैन का, और मेरी लहद में छोड़ना बस इतनी सी जगह, मरने के बाद कर सकूं मातम हुसैन का, मरने के बाद कर सकूं मातम हुसैन का। बस ज्यादा लंबी जहमत नहीं, 10 या 12 मिनट और। शाह जी, करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है, करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है, लाखों बद किरदार हार गए, 72 साहिबे किरदार जीत गए। शाह जी, शराबी हार गए, नमाजी जीत गए, पत्थर हार गए, बदन जीत गए, नेज़े हार गए। ये यकीन करें कि ये लोग, आज मुझे पता था सारे माशाल्लाह ज़बार आए हैं करबला से, उसी पे 2-3 मिनट ये बातें और उसके बाद मसाइल। नेज़े हार गए, सरापे जीत गए, कूफे के कम्मी हार गए, मदीने के सैयद जीत गए। शाह जी, जुमला सिर्फ यही है कि कुरान हिफ्ज करके, याद करके, मस्जिदों के मिंबरों से बैठ के पढ़ने वाले हार गए, नेज़े की नोक पे तिलावत करने वाला जीत गया। नेज़े की नोक से कुरान पढ़ने वाला जीत गया। सिर्फ कुरान नेज़े की नोक से नहीं पढ़ा हुसैन ने, हम यही सुनते आए हैं, यही कहते आए हैं कि नेज़े की नोक से तिलावत करता था। हुसैन ने सिर्फ कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि मुसलसल बोलता गया, खिताब करता गया हुसैन। शाह जी, 1600 मील का सफर बनता है आने जाने का, और उसमें हुसैन खिताब करता गया, बोलता गया। आखिर मकसद क्या था हुसैन का कि खिताब करता जाए शहादत के आसमान शाह मशरिकैन का? मकसद क्या था? रसूल के लाल का, मुर्तजा के जलाल का, फातिमा के चैन का, कि वो बोलता गया, बोलता गया। शाह जी, शायद हुसैन का मकसद यही हो जो मैंने लिखा है कि शायद यही हो कि है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा हूँ, है जिंदगी मेरे ताबे तभी मैं जिंदा हूँ, किज़ा भी है मेरी बांधी जभी मैं जिंदा हूँ। और हुसैन नेज़े पे पढ़ के कुरान कहता रहा, यजीदियत को बता दो अभी मैं जिंदा हूँ, यजीदियत को बता दो अभी मैं जिंदा हूँ। ये लोग, ये हस्तियां, ये घराना शाह जी कब समझ में आएगा? क्यों? कभी ये कुरान नाजिल होने से पहले तिलावत करते हैं, कभी ये बदन के बगैर तिलावत करते हैं। बचपन था हुसैन का, 2 मिनट सिर्फ ये गुफ्तगू, बचपन था इमाम हुसैन का,
हुसैन नाना की गोद में तशरीफ फरमा है। हुसैन अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, मोहम्मद अपना माजी देख रहे हैं। पहले मोहम्मद की गोद में पांचवा मोहम्मद बैठा है। खिलकत कायनात के सबब की गोद में शिफाए रोज़े महशर बैठा है, यानी कुल की आगोश में जुज बैठा है। जुज कुल की आगोश में सजा हुआ है। हुसैन नाना की आगोश में यूं बैठे हैं जैसे कौसर की आगोश में जमजम छलक रहा हो। बैठे बैठे महसूस किया लोहे महफूज पे तरामीम करने वाले हुसैन ने कि नाना के चेहरे पे कोई गम है। कहा नाना क्या गम है तुझे? पूछा खैरियत है नाना? हुसैन नाना ने कहा वाली इमकान ने वाली करबला से कहा हुसैन एक काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से दिल उदास है। काम का लफ्ज आया कि हुसैन ने नाना की आंखों में आंखें डाल के कहा नाना कोई ऐसा काम भी है जो मेरे होते हुए नहीं हो रहा? फरमाया हुसैन मेरा जी चाहता है कि मैं लंबा सजदा करूं, मेरा जी चाहता है कि मैं लंबा सजदा करूं, मैं सजदे में सर रखूं और जब तक मेरा जी ना भरे मैं सजदे से सर ना उठाऊं। तो नाना करें सजदा लंबा, करें तवील सजदा। फरमाया यही तो मसला है कि जिसका सजदा है वही तो मना करता है कि क्यों लंबा सजदा करता है। जिब्रील आ जाता है, कहता है अल्लाह फरमाता है मोहम्मद नमाज थोड़ी पढ़, ऐ कमली वाले बंदगी थोड़ी कर, आधी रात तक किया कर। ये तेरा क्याम, ये तेरा रकू, ये तेरी तस्बीह, ये तेरा सजदा, ये तेरी तहलील तुझे थका देते हैं। मोहम्मद तेरे माथे पे पसीना मुझे गवारा नहीं, तेरे हाथ तेरे पैरों पे बरम मुझे गवारा नहीं। बस मोहम्मद इतनी नमाज पढ़ कि जितना तुझे देख के लोगों को पढ़नी आ जाए। तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, बस तू मुझे देख, मैं तुझे देखता हूँ। हुसैन मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई लंबा सजदा करूं, वो करने नहीं देता। नाना की गोद में बैठा हुआ हुसैन बतूल का चैन खड़ा हुआ, अपने छोटे छोटे हाथ उठा के नाना की रीशे मुबारक के नीचे रखे। अब बतूल के बेटे ने कहा नाना ये भी कोई काम है? जिस दिन मेरा दिल बन गया मैं तुझे लंबा सजदा करवा दूंगा। नाना ये भी कोई काम है? जिस दिन मेरा दिल आया, मेरी तबीयत हुई, नाना तुझे लंबा सजदा करवा दूंगा। हुसैन देख ले काम बड़ा मुश्किल है। नाना मैं मुश्किल कुशा का बेटा हूँ। अब मैं इसे हुसैन की मर्जी कहूँ या मोहम्मद का मजाज, नमाज का मुकद्दर कहूँ, ये फैसला आप पे। जो तुम मानो उस पे मैं राजी। वक्त हो गया नमाज का, रसूल चले नमाज की तरफ, नमाज चली हुसैन की तरफ। 2 मिनट इन आंखों पे काबू रखो, इंशाल्लाह मसाइब में पढ़ूंगा, जी भर के पुरसा करेंगे। रसूल चले नमाज की तरफ, नमाज चली हुसैन की तरफ। अली के लाल से नमाज ने कहा हुसैन मैं अफजल हूँ। और यकीन करें कभी मत ये सोचना कि नमाज नहीं जानती थी कि कौन अफजल है। नमाज जानती है कि हुसैन अफजल है, ये सिर्फ हम तक पहुंचाने के लिए ये बातें होती थी। नमाज को पता है कि हुसैन अफजल है, नमाज को पता है कि हुसैन नहीं तो मैं भी नहीं। और जब भी कोई मासूम दूसरे मासूम से सवाल करता है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि उस मासूम को उस बात का इल्म नहीं है, वो सिर्फ हमारी हिदायत के लिए पूछा करते थे। क्या हजरत जिब्राइल दर पे आके खड़े होते थे तो अंदर जनाब सईदा फरमाती थी कौन है, तो क्या जनाब सईदा को नहीं पता कि कौन है? रसूल आके दस्तक देते थे तो पूछती थी कौन है? क्या बीबी को नहीं पता कि बाहर मेरा बाबा खड़ा है? ठीक है, रसूल ये हिदायत दे रहे थे कि इस दर पे आओ तो तुम भी रुक के आओ। चादर के नीचे रसूल हैं, जिसने भी आया पूछा कि चादर के नीचे कौन है, क्या उन्हें नहीं पता कि कौन है चादर के नीचे? ये सिर्फ हमें समझाने के लिए। नमाज जानती थी कि मैं अफजल नहीं हूं, सिर्फ हुसैन अफजल है। अली ने फलाल ने फरमाया कि समल के बात कर, तू फरू है, मैं असूल हूँ।
तेरी कज़ा है मेरी कज़ा कोई नहीं, तेरी कज़ा है मेरी कज़ा कोई नहीं। तू सफर में आधी रह जाती है, मैं सफर में पूरा होता हूँ। तू बीमारी में माफ है, मैं बीमारी में याद किया जाता हूँ। तू बीमारी में नमाज की आंखों में आंखें डाल के फरमाया चल मेरे साथ मस्जिद में, तेरा गरूर अभी टूट जाएगा और नाना का काम हो जाएगा। नमाज को लेके मस्जिद के दर पे आए। हुसैन, अब मैंने आपको पूरा वाकया नहीं सुनाना, सिर्फ वो मंजर दिखाना है कि हुसैन जग से हसीन बन के लतीफ कैफियतों से गुजरा। हुसैन जग से हसीन बन के लतीफ कैफियतों से गुजरा। सहन में आया जरा सा ठहरा, रुका चला फिर दरों से गुजरा। मुअल्लम मकतब इलाही सहाबियों की सफों से गुजरा और बिला झिझक पुरसुकून होके बड़े बड़ों के सरों से गुजरा। बिला झिझक पुरसुकून होके बड़े बड़ों के सरों से गुजरा, बड़े बड़ों के सरों से गुजरा। मैंने सिर्फ ये बताना है कि जब रसूल की पुश्ते मुबारक पे हुसैन आया तो फरिश्तों को क्या नजर आया? कुछ इस तरह पुश्ते मुस्तफा पर वो इब्ने अब्दुल मनाफ आया, फरिश्ते महसूस कर रहे थे कलाम हक पे गिलाफ आया। फरिश्ते महसूस कर रहे थे कलाम हक पे गिलाफ आया। और बस है मर्ज ला दवा की दवा मातमे हुसैन, मर्ज ला दवा की दवा मुश्किल में बेहतरीन दुआ मातमे हुसैन। और मरता है जिस्म रूह में होती है जिंदगी, मरता है जिस्म रूह में होती है जिंदगी और रूह की है बेहतरीन गज़ा मातमे हुसैन। और ये अहद है, वफा है, ताल्लुक है, बख्त है। हम सब की तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि ये अहद है, वफा है, ताल्लुक है, बख्त है। मीसाक से ही हमने चुना मातमे हुसैन, मीसाक से ही हमने चुना मातमे हुसैन। और माँ ने लोरियों में नोहे सुनाती रही मुझे, मैंने तो अपनी माँ से लिया मातमे हुसैन। और पूछा खुदा ने लाए हो ज़ादे निजात क्या, मैंने बसद यकीन कहा मातमे हुसैन, मैंने बसद यकीन कहा मातमे हुसैन। और चलती हवा को रोक सका है भला कोई, चलती हवा को रोक सका है भला कोई, अब तो गली गली में हुआ मातमे हुसैन, अब तो गली गली में हुआ मातमे हुसैन। और बस आखिरी 2-3 मिनट के फाकों का हुनर सब्र की जुर्रत है सकीना। बीबी के दिल बन गया कि चलो जहां उस शहनशाह का जिक्र किया है जिसके बगैर न सकीना को चैन था, न सकीना को अपने बाबा के बगैर चैन आता था। शब्बीर के इनकार की कुव्वत है सकीना, कह दे जो भतीजी तो ये दरिया भी ले आए, कह दे जो भतीजी तो ये दरिया भी ले आए। अब्बास के जज्बों की हरारत है सकीना, और शब्बीर है तौहीद और नबूवत की जरूरत, शब्बीर के मकसद की जरूरत है सकीना। और सज्जाद तो खुद सब्र का कुरान है लेकिन, सज्जाद तो खुद सब्र का कुरान है लेकिन, सज्जाद के होंठों की तलावत है सकीना। और ये कह के पढ़ी शाह ने नमाज़े गमे फुरकत, सुगरा मेरी तकबीर है नीयत है सकीना। और मक्तल में कभी शाम के पुरहौल सफर में, ज़ैनब जिसे ढूंढे वो फजीलत है सकीना, ज़ैनब जिसे ढूंढे
वो फजीलत है सकीना। सकीना को किसी बीवी के हवाले से 2-4 मिनट मसाए। हुसैन ने जाने से पहले ज़ैनब से कहा, ज़ैनब एक नाना का दीन और एक ये सकीना तेरे हवाले है। क्या जी, बीबी का नाम फातिमा है। सुकैना इसलिए कहा जाता है कि सुकून देने वाली। ये वो बेटी है हुसैन की जिसके बगैर ना एक पल हुसैन को चैन आता था, ना सकीना को अपने बाबा के बगैर चैन आता था। कसम खुदा की मैं हमेशा जहां भी बीबी के मसाइल पढ़ता हूँ ना, तो मैं उधर ज़्यादा से जरूर ये बात करता हूँ कि जिनके घर में 3.5 साल की बच्ची हो ना, कोई रोए ना रोए, कोई पुरसा दे ना दे, 3.5 साल की जिनकी बच्ची है ना, वो इस बीबी को पुरसा जरूर दे। शाम गरीबा जब जनाब ज़ैनब और जनाब कुलसूम ने सारों को इकट्ठा करके बिठाया ना, तो शायद सकीना नहीं मिलती थी। अभी ये बेटा पढ़ रहा था कि झड़कियां दे के उठाया। कसम खुदा की झड़कियां दे के उठाया तुम्हारे डर से पढ़ा जाता है कि सकीना को बाबा की लाश से झड़कियां दे के उठाया। यकीन करो, कोई भी मक्तल की अगर तुम किताब पढ़ लो, शायद ये वो वक्त है जब सकीना के तमाचों की इब्तिदा हुई। मैंने अपनी इन आंखों से पढ़ा है कि पहला तमाचा शिमर मलऊन ने उस वक्त मारा जब सकीना बाबा का लाशा नहीं छोड़ती। ज़ैनब ने कहा, कुलसूम सकीना नजर नहीं आती। मक्तल की तरफ चली लो। और ये हकीकत भी है कि सकीना को हुसैन के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। मक्तल में जाती जा रही हैं, ढूंढते ढूंढते लाशों के दरमियान देखा एक लाश के साथ करवट लिए सकीना सो रही है। कहा, सकीना उठ। सकीना उठी। जनाब ज़ैनब ने कहा, सकीना तू कहाँ सो रही है? कहा, बाबा के साथ सो रही हूँ। कहा, सकीना तुझे कैसे पता ये तेरा बाबा है? इस जिस्म पे तो सर है नहीं। कहा, अम्मा जब मैं मक्तल की तरफ बाबा बाबा पुकारती आई तो मुझे इस कटे हुए गले से आवाज आई, आ सकीना, मेरी सकीना, आ मेरे पास आ जा। अभी सफर में है ये हाय शब्बीर की बेटी का मुकद्दर मोमिन। राहतें कम है मगर ज़हन में डर ज्यादा है। मक्का ओ करबो बला, कूफा ओ शाम ओ जिंदान, जिंदगी कम है सकीना का सफर ज्यादा है। जिंदगी कम है सकीना का सफर ज्यादा है। हम मातमदारी करते हैं, मजलिस करते हैं, खत्म होती है, घरों को चले जाते हैं। क्या जी सकीना पूछती थी इन्हीं दिनों में एक सज्जाद से, सज्जाद ये जो उड़ते हुए परिंदे जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद फरमाते थे सकीना ये अपने घरों को जाते हैं। सकीना बड़े हैरान होकर कहती थी कि भैया कोई हम भी घर जाएंगे, हम अपने घरों में जाएंगे, बिस्तरों पे सो जाएंगे, आराम करेंगे।
मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमें बिस्तर भी मैसर है, तकिए भी मैसर है, आराम भी है, रोटी भी है, पानी भी है। जरा सोचो वो 3.5 साल की बच्ची जब जिंदान में सकीना को नींद आती थी ना, सोचाइए एक पत्थर का तकिया होता था, खाक पे लेट जाती थी और लेट के सोती नहीं थी बल्कि सोचती थी और बाबा से बातें करती थी। कहती थी बाबा शाम की सारी अमीरजादियां बिस्तर में सोई हुई, बाबा देख तेरी सकीना खाक का बिस्तर बना के पत्थर के तकिए पे सर रख के लेटी हुई है। यही वजह थी शादी कि जब शहादत के आसमान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दमे रुखसत चले ना खेमे से, 3.5 साल की बच्ची कहती बाबा आप जा रहे हैं मैं किसके सीने पर सोऊंगी? तो हुसैन कहते थे बेटी आज से तुम माँ के साथ सोना। तो सकीना कहती थी बाबा माँ के साथ तो असगर सोता है। हुसैन ने कहा आज के बाद असगर मेरे साथ सोएगा, तुम माँ के साथ सोना। मैं अभी वहाँ बैठा झूला देख रहा था ना, शहजादे असगर के मसाइब का जुमला सुनाता जाता हूँ कि यकीन करो कि मैं वहाँ बैठा झूला देख रहा ना, तो मैं झूला देख के रो रहा था। और मेरे ज़हन में मेरे सामने ये मंजर था कि मैं झूला देख के जब रो रहा हूँ इतना, तो रुबाब का क्या हाल होगा जो खाली झूला जलाती रहती थी, सारी जिंदगी खाली झूला। इसीलिए जब जनाब रुबाब इस दुनिया से गई है ना, जब जनाब ज़ैनब ने उनके हाथ को खोला है ना, तो शादी कसम खुदा की जनाब रुबाब के हाथ में असगर के जले हुए झूले की लकड़ियां थी। हुसैन कहता सकीना आज से तू माँ के साथ सोई, असगर मेरे साथ सोएगा। तो इसका मतलब है कि हुसैन को पता था कि सकीना की नींद कितनी अहम है। यकीन करो किसी की मैयत हो जाए ना, खुदा ना करे किसी घर में, तो जो उसके वारिस होते हैं ना उसको मैयत के करीब नहीं जाने देते। इतनी बेगैरत उम्मत थी कि 11 मुहर्रम को लाशें पड़े हैं और उन्हीं के दरमियान से सैयदानियों को लेके गए हैं। सैयदानों का हाथ पसे गर्दन बांधे हुए ऊंटों पे सवार 11 मुहर्रम मक्तल से लेके गए। शिबर बलौन कहता कि मैंने सुना है कि हुसैन की एक बेटी है 3.5 साल की, क्या नाम है उसका? कहा सुकैना बिन्तुल हुसैन। कहा वो बच्ची कहाँ है? कहा वो बच्ची अपनी फूफी के साथ है। इसने कहा वो बच्ची को लाओ। जब जनाब सकीना इस मलऊन के सामने आई ना, तो इस जालिम ने हुक्म दिया कि इसको अलहदा ऊंट पे बिठाओ। लोगों ने कहा कि ये 3.5 साल की बच्ची अलहदा ऊंट पे कैसे बिठाएगा तू? अब इस जालिम ने हुक्म दिया कि जाओ रस्सियां लेके आओ। शाहजी रस्सियां लेके आए। काश के तू वो मंजर सुन सके और वो मंजर देख सके। इस जालिम ने बच्ची को लिटाया ऊंट के पर ऊंट पे, दोनों हाथों के ऊंट के गर्दन के साथ बांधे, रस्सियों के साथ जकड़ा सकीना की पसलियों को। और इस जालिम ने कहा कि ऊंट के इस जालिम ने कहा अब ऊंट चलाओ। मकसद कहता है अब जिस तरह काफिला चलता जाता, ऊंट दौड़ते जाते, उसी तरह सकीना ऊंट के साथ थी। सारा बदन बीबी का छल्ली हो गया। या हुसैन या